गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। So all of you were able to attempt test at IMCRP. There was no problem, I believe. Yes. यस मैम। समटाइम्स प्रॉब्लम है बट क्या बेटे समटाइम्स क्या? समटाइम्स प्रॉब्लम होती है समटाइम्स नहीं। ओके ओके। तो आपका टेस्ट टेस्ट विजिबल होता है जैसे? यस मैम। मैम आज द इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है IEMCRP पे। ओके, अब रिजॉल्व हो गया है। मेरे अभी जस्ट क्लास से पहले भी क्लास थी, तो एमबीए के बच्चों ने अच्छे से टेस्ट किया है। तो अभी वो बीच में 1 आवर के लिए सर्वर डाउन था, बट नाउ इट इज फाइन। आपको जो है टेस्ट मेरा 4:10 पे दिखेगा। उसके अकॉर्डिंग आपके पास 4:50 तक टाइम है, 40 मिनट्स यू हैव। तो अगर उसमें प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो। आई शेड्यूल योर टेस्ट एट गूगल वे। ओके। यस। ओके मैम। So I hope you all have the syllabus copy with you and you are maintaining notes, whatever I am teaching. Yes. Yes. Somebody please reply. यस मैम। Yes, beta. यस मैम। Soma, yesterday there was no problem regarding IMCRP test, बच्चे? Yes. नहीं मैम, IMCRP पे कभी कभी टेस्ट आता है, Am कभी I कभी नहीं आता audible? है। जी जी जी। मैम, IMCRP में कभी कभी टेस्ट आता है, कभी कभी नहीं आता है। आप काइंडली गूगल शीट में ही दीजिए, क्योंकि वो एग्जाम मिस हो जाएगा नहीं तो। आज ही एक एग्जाम नहीं आया है मेरा IMCRP पे, तो सर को मैंने बोला। हेलो। shit, क्या हुआ? Can you hear my voice, बच्चे? Somebody यस please reply. Okay, okay. Great, great. यस मैम। Okay, I was talking to Soma. Maybe I thought that she is not able to hear me up. So that's why. Soma, are you able to hear me, bache? यस मैम। Okay. So your test was done yesterday, right? It was attempted nicely. Can you see that you have attempted your test and it has been graded? नो मैम, एक्चुअली IMCRP में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। आप काइंडली एड इन गूगल शीट में कीजिए, क्योंकि आज भी एक प्रॉब्लम हुआ है। दो एग्जाम सिर्फ आया है, बाकी सर का जो एक एग्जाम है वो अभी तक नहीं आया है। तो आप गूगल शीट Okay. में ही सबसे अच्छा है, तो इसमें तो कंफर्म रहेगा। एटलीस्ट हम मैंने क्वेश्चन आंसर दिया है, वो मैंने चेक हो पाएगा। IMCR में तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अभी आज आज एक बार 4:10 पे आप अभी IMCRP खोलिए। जस्ट एंश्योर कि मेरा टेस्ट विजिबल है लीगल। यस मैम इट इज।
Is there any issue as far my voice is not connected, or like I'm not able to understand whether you are getting what I'm saying or not? Yes. Ma'am, in middle you are lefting the meeting and again you are joining the meeting. Okay, maybe my network connection is not stable. It may be due to poor weather condition. Okay, so it's fine. What I was discussing regarding IMCRP, that you all please see at 4:10. If there is any kind of problem in doing IMCRP test, just let me know. I'll schedule a test on Google Sheet. Okay, after 5, I'll schedule your test, and accordingly, you have a day that you can mark your test on there. So if there is no problem, then accordingly you please attempt your test at 4:10, and you have 50 minutes with you, right? 40 minutes. 4:50 that test would be elapsed. Okay. So the moment my class is over, log into IMCRP and let me know if any problem is persisting. If there is no problem, then it is fine. Go and continue your test and complete it. Okay, bache? Okay, so let's talk about. Uh, we have discussed about offer, the various rules of offer. Anything you wanted to ask, or any problem or any concept which is not clear? Yes. Any this case regarding Harvey versus Facey? Any doubt? Yes. Any doubt to anyone? No, ma'am. Now we are moving to acceptance, right? Please understand, when I say acceptance, it is as per section 2B. Offer was as per section 2A, and now 2A is 2 subsection A. It was offer, and second topic of Indian Contract Act is acceptance. So it is under section 2 subsection B. Acceptance means agreeing or disagreeing onto something. If I have to explain you acceptance, it is a process to agree on something or disagree on something. When we use the contract meaning of acceptance, we refer this case. That means whenever any offer is made, whenever any proposal is made, whether it is accepted or not, whether it is accepted or rejected, that is called acceptance. But acceptance is only taken when the person is accepting or agreeing on the project. If it is not, that is known as rejection, not acceptance. So as per section 2 subsection B, if offer is made by A to B and B accepts it, it is known as acceptance. B rejects it, it is not called acceptance. So a person who is making a proposal to another, whom proposal is I have made, a if question. proposal is assented, yes, कल आपने टेस्ट में आपने दिया था क्वेश्चन एक, ये yes beta. ए एंड बी ऑफ श्री गंगानगर, ठीक है, श्रीनगर सॉरी, entered into a contract on a 1st September 2006 as per the provision of the Indian Contract Act. इसमें Okay. क्या है मैम? नहीं, क्या कॉन्ट्रैक्ट था? कॉन्ट्रैक्ट ये था, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ए एंड बी ऑफ श्रीनगर entered into a contract on a 1 September 2006 as per the provisions of the Indian Contract Act. So Indian Contract Act will not be applicable because Jammu and Kashmir, like you have witnessed, आज के टाइम पे जो लॉ बनेंगे, they are very much applicable to J&K, but श्रीनगर being a part of J&K, कोई भी इंडियन लॉ उस पे एप्लीकेबल नहीं होता, कोई भी, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, नो एक्ट इज एप्लीकेबल व्हेन दे वर फॉर्म्ड. तो मैम आप 2006 में दिस वाज नॉट एप्लीकेबल. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजन श्रीनगर में एप्लीकेबल नहीं होती हैं. यस. ओके, तो इसमें ये रहेगा, इसमें नो बिकॉज द एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्सटेंड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. यस बेटा, यस, राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन. ये वो जो है J&K में एप्लीकेबल नहीं है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट J&K, क्योंकि हम भी जानते हैं कि J&K इज वन ऑफ, अभी आप आज की सिचुएशन की बात करो तो इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया,
but there were certain things which were very disputed. India was saying कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान was saying it is my property. तो कुछ पीओके जिसको हम बोलते हैं पीओके एरिया, पाकिस्तान ओन्ड कश्मीर, तो वो एरिया को छोड़ के बाकी कश्मीर को हमने यूटी का एक स्टेटस दिया है जिसमें इट इज इंडिपेंडेंट कंट्री कह सकते हो। अभी जो लास्ट ईयर देयर वाज ए बिल दैट वाज पास्ड जिसकी वजह से देयर वर क्वाइट फिनोमिनल कर्बिंग, राइट, वो 3G से 2G पे आ गए थे। कितना टाइम तक उन्होंने जो है वो कश्मीर को उसको एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया करने के लिए देयर वाज ए लॉट स्ट्रगल डन बाय मोदी गवर्नमेंट। तो उससे पहले जो 2006 या 2008 का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई भी आज की डेट में जो एग्जिस्ट होगा वो तो एप्लीकेबल होगा, बट कोई ए और बी 2006 में कोई कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इंडिया में जितने भी लॉज हैं दे आर एप्लीकेबल टू इंडिया एक्सेप्ट J&K। ये नहीं कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है, दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या कंपनीज एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट, कोई भी लॉ ऑफ इंडिया is not going to applicable on J&K. Is it clear, बच्चे? Okay. Any other doubt or anything you want to ask? नहीं. Okay. So acceptance is when the proposal is assented. Assented means given consent. Please understand. Assented is giving positive consent, giving अपनी उसको मानना, उसकी चीज को मानना जो ऑफर आई है, गिविंग पॉजिटिव कंसेंट। कंसेंट का मतलब अपनी राय दे देना, हाँ, जिसने ऑफर किया, जिसको ऑफर किया, टू होम प्रपोजल इज मेड, अगर उसने मान लिया तो इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, राइट। So acceptance means agree on something, right? If it is disagree, then that is called rejection. क्या कहते हैं उसको? Rejection. 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 Right? Yes. Okay. Now please understand what are the legal rules for acceptance. Number one, very important. It must be absolute and unconditional. Acceptance must be like yes, okay, fine, like absolute and unconditional, no condition attached. Acceptance should not be कि मैं आपकी ऑफर मानूंगा तब जब ये हो जाएगा. It should be without any condition. Acceptance should be yes, that means जिस वे में आपको उसको एक्सेप्ट करना है, you say yes, okay, so these words must be used. It's not like yeah, I may assume, may, should, ये स्कोप नहीं होना चाहिए. Your acceptance should be very much absolute and clear. Absolute means clear, certain, yes, no, it has to be very much clear. Unconditional is no condition should be attached. There should not be if and but. I will accept your proposal if I will get this contract. A ने B को बोला कि I want to sell a car. The car is this model and this price. Okay. B या तो ये कहे कि हाँ मैं ये कार लेने को रेडी हूं, तो ये तो एक्सेप्टेंस हो गई एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. B ये कहता है मैं कार तो लूंगा बट जब मेरे को बैंक लोन दे देगा, दैट मीन्स पैसे नहीं है. मान लीजिए बैंक लोन नहीं देता तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्सेप्टेंस है? नो. और बैंक लोन दे देता है तो भी ये एक्सेप्टेंस नहीं है. एक्सेप्टेंस हैज टू बी क्लियर कट in a certain way, in a clear way, in an absolute way and without any condition. Without any condition. B कहता है कि मैं आपकी एक्सेप्टेंस ऑफर लेना चाह रहा हूं, मैं कार तो लेना चाह रहा हूं अगर मेरा रिलेटिव मुझे पैसा दे देगा, अगर मेरे पापा मुझे पैसे दे देंगे. अगर वर्ड आते ही दैट बिकम्स कंडीशनल. So acceptance must be absolute and unconditional. If it is not, that is not treated as valid acceptance. Let me tell you very clearly, अगर acceptance clear words में नहीं है, if it is not absolute, if it is with any condition, with if and but,
then that is not considered as valid acceptance. Is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Acceptance must be given as per the mode. Very important word. It must be given as per the mode prescribed by the offerer. Offerer is a person who is offering something. उसने कहा कि आपको मुझे जवाब देना है by making a call onto this number. अब जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको उसी नंबर पे कॉल करके बताना है। जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ विनिंग लॉटरीज, राइट? आपने कोई लॉटरी टिकट जीती है तो उसमें एक लिखा होता है कि अगर आप जीत जाते हो तो आपको ये लॉटरी टिकट दिखानी ही पड़ेगी। चाहे आप जीत गए हो, आपकी लॉटरी टिकट गुम हो गई है तो वो माना जाएगा कि आप जीते नहीं हो। इसी तरीके से आज अगर जो आपको ऑफर कर रहा है वो कह रहा है कि आपको मुझे लेटर लिख के भेज के आपको बताना है कि आर यू एक्सेप्टिंग इट और नॉट, तो आप कोई और मोड नहीं अडॉप्ट कर सकते। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन सेलेक्टिंग द मोड। मान लीजिए जब आपको ऑफर दी उसने कोई मोड नहीं बताया तो एनी मोड विल बी वर्केबल, बट इफ ऑफर इज गिवन इन ए स्पेसिफिक मोड, जैसे उसने कहा कि आई एम गोइंग टू सेल ए कार, यू हैव टू रिप्लाई मी बाय द मैसेज, तो आप उसको कॉल कर रहे हो, दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट ट्रीटेड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। उसने कहा इफ यू आर एक्सेप्टिंग इट सेंड मी ए मैसेज ऑन टू दिस नंबर, तो मैसेज नंबर इज द मोड। तो आप कोई और मोड अगर एक्सेप्टेंस का यूज करते हो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए राइट मोड। तो जो आपको ऑफरर ने मोड बताया है आपको उसी मोड के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस देनी है। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन इन एनी अदर मोड एक्सेप्ट व्हाट इज स्पेसिफाइड। जो ऑफरर ने स्पेसिफाई की है आपको एक्सेप्टेंस उसी के अकॉर्डिंग देनी है। तो मोड मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट? थर्ड, acceptance must be given before the lapse of the time. Very important. अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कुछ टाइम पीरियड दिया है उसने तो आपको उसी के अंदर एक्सेप्ट करनी है या रीजनेबल टाइम के अंदर आपको एक्सेप्ट करनी है। ऑफर कई बार टाइम टैग लिमिट के साथ आती है कि आज आपको दिया है, ओके अगर आपको कार चाहिए हो तो मुझे हफ्ते में बता देना। that means that 1 week is the minimum and the maximum time. You take it like this, that is the only time when you have to give your opinion ki yes I want a car. Once the 1 week is over, that offer is automatically over. वो ऑफर स्टैंडिंग नहीं रहेगी इफ इट इज कमिंग विद ए टाइम लिमिट विद इन ए रीजनेबल टाइम। लॉ कहता है कि अगर ऑफर आपको इस तरीके से दी है कि जिसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया बट तब भी आपको रीजनेबल टाइम के अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट कर देना है। भूले भटके नहीं कि आपको आज ऑफर दिया है 2 महीने बाद आप कह रहे हो कि यस आई एम रेडी फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। नो, इट इज नॉट। रीजनेबल टाइम इज द एवरेज टाइम टेकन। बाकी जो सप्लायर जितना टाइम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। ये नहीं कि आपने आज एक गाड़ी OLX पे देख ली है, यू वांटेड, आपने 3 महीने के बाद उसको कांटेक्ट किया, वो कह रहा है कि वो तो गाड़ी बिक गई, OLX पे है, OLX वालों ने नहीं हटाई होगी। तो विद इन ए रीजनेबल टाइम यू हैव टू एक्ट अपॉन एन ऑफर। यू कैन नॉट क्लेम कि ऑफर इज ओपन फॉर यू ऑल द टाइम, राइट? Last is acceptance may be given by any person in case of general offer. अगर जनरल ऑफर क्या थी? जनरल ऑफर क्या थी? एनीबडी प्लीज रिप्लाई। जो ऑफर मैम सबके लिए सेम हो। हाँ, एनी ऑफर विच इज मेड टू मासेस। इफ एनी ऑफर इज गिवन टू मासेस that is treated as the offer as a general offer, right? Let me take your attendance first. तो अगर आपने कोई भी ऑफर ऐसी है विच इज बीइंग देयर इन दिस मैनर यू हैव टू एक्सेप्ट इट बाय एनी पर्सन ऑफ योर फैमिली जिसने ऑफर देख ली। इफ इट इज ए जनरल, इट इज नॉट स्पेसिफिक, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट इट, एनी पर्सन, राइट? अगर आपने एडवर्टीजमेंट देखी है रिगार्डिंग द कार, ए ने बी को नहीं दी है, ए ने एक जो है वेबसाइट को दे दी है कि आई वांट टू सेल माय कार, so it is a general offer, anybody can accept it from the public. Okay, next, acceptance must be given, please understand, by a person to whom offer is made or authorized person.
कंपनीज में जब ऑफर होती है, आज अगर कोई रिलायंस कंपनी फ्यूचर ग्रुप को कह रही है, ऑफर दे रही है, तो उनका ऑथोराइज्ड एडवोकेट जवाब देगा ऑन द बिहाफ ऑफ फ्यूचर ग्रुप. Similarly, when any offer is given by companies to a specific person or a specific company, या तो वो पर्सन जवाब दे सकता है या any authorized person can reply. राइट. सो वन हु इज ऑथोराइज, जैसे आज अगर मेरी बात करें तो माई अथॉरिटी मे बी यूईएम. तो आज अगर कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काम है, जो मेरी टैक्सेशन काटने का राइट है, दैट इज यूईएम. तो मेरा फॉर्म नंबर 16 is mine, but that is filled by UEM. So this is nothing but the authorized person. So tax is deducted and filled with the income tax department on my behalf by the UEM. This is authorized. इसी तरीके से जिसने एक्सेप्टेंस ऑफर एक्सेप्ट करनी है, या तो वो खुद पर्सन करे या उसका कोई नॉमिनेटेड पर्सन करे या ऑथोराइज्ड पर्सन करे. Very important is it must be communicated. If it is not communicated, it will not be treated as acceptance. आपने सोच लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस केस अगर मैं आपको बात करूं, आज आपने जो है एक अपने आपको ऑफर आई और आपने क्या किया, उसको पेपर पे लिखा और आपने सोचा कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, और पेपर के बीच में पेपर रख दिया. आपने एक्सेप्ट कर लिया है उस पेपर के अकॉर्डिंगली, वो भेजा ही नहीं, तो इट इज नॉट ट्रीटेड, इट इज कम्युनिकेटेड नंबर वन, एंड इट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस. तो आपके पास अगर बहुत सारा काम है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने वो एक्सेप्टेंस जिसको कॉन्ट्रैक्ट को देनी थी, आपको कोई टेंडर मिला है ना, टेंडर मिला है, तो टेंडर को आपको एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट को सप्लाईज करनी होती है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को ठीक है और मैं ये वाला काम आपको इस डेट तक फर्निश करूंगा. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपको एक टेंडर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया. एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने काम कंप्लीट करके उनको भेजा ही नहीं. अगर आप भूल गए हो, लाइक दिस केस वाज दिस, so then in that case that is not a right acceptance. It must be communicated. Mental acceptance is no acceptance. Yes, अगर आप silent हैं, you cannot say that I am accepting it. So it is not that silence accept. If person is silent, he is accepting the proposal. No, mentally you cannot say कि वो person ने accept कर लिया है, वो मान लिया है. No doubt your proposal is attractive. आपने जो उसको ऑफर दिया है, it is very attractive. आपको लग भी रहा है कि वो पर्सन मान जाएगा, but just by observing the nodding or mental acceptance or by silence, that is not at all considered as acceptance. तो आपके मन में, आपके दिमाग में अगर एक्सेप्टेंस है, तो वो मानी नहीं जाएगी until that is communicated. And acceptance must not be precedent to offer, right? You cannot exactly give the acceptance if it is not offering you. So if offer is made and you give acceptance, it is fine. तो ऑफर से पहले कोई एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. राइट? क्लियर बच्चे? एनी डाउट? Yes, ma'am. Last 2 points. Mental acceptance is no acceptance. If you are accepting something in your mind only, that I like this. आपने कोई pamphlet देखा, you like that advertisement, आपको लगा कि yes, these products are being sold by the company, yes, I have to take it. Until you don't initiate it. कुछ कई बार ऐसी हमारी चीजें दिमाग में होती हैं कि मानना है, लेना है, but सेल आई और चली गई. तो will that be considered as acceptance? No. तो इन अ माइंड या इन ए साइलेंस हमें को है कि हमें मानना है, बट अंटिल वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग, इट इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस. सो मेंटल एक्सेप्टेंस, आपके माइंड की एक्सेप्टेंस जब तक कम्युनिकेट नहीं होगी, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस. प्लस एक्सेप्टेंस ऑफर के बिगाड़ नहीं है. अगर आपको ऑफर ही नहीं किया गया और आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, देन यू आर नॉट गिविंग ए राइट एक्सेप्टेंस. Please understand, acceptance must not be precedent to offer. That means the circle like move like this: offer, then acceptance. It is not like acceptance and then offer. It is not like this. So acceptance to offer is wrong. Offer to acceptance is right. So acceptance must not be precedent. Precedent to offer. Precedent to offer का मतलब है कि ऑफर के प्रायर, ऑफर से पहले ही आप कुछ चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो. इट इज नॉट लाइक द सर्कल इज सेक्शन 2A एंड देन सेक्शन 2B.
that is offer, then acceptance. Acceptance cannot be overlapped by the offer if it is not made yet. आपको पता है कि जैसे कुछ कंपनीज का होता है कि यस वी हैव टू गिव द दिस, आपको पता है 26 जनवरी की सेल आएगी या 15 अगस्त की आएगी या दिवाली सेल आएगी, फाइन। तो आप दिवाली सेल आने से पहले ही जो प्रोडक्ट्स ले रहे हो ऑन द बेसिस कि ये डिस्काउंट हो जाएगा, कंपनी ने अगर ऑफर निकाली ही नहीं है तो आप जो प्रोडक्ट्स ले रहे हो आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि वो आपके डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स हैं, राइट। ऑफर इज मेकिंग ए राइट वैलिड एक्सेप्टेंस, विदाउट ऑफर देर इज नो एक्सेप्टेंस, राइट बच्चे? Yes, ma'am. ओके ओके। Communication of offer and acceptance, very true and very important also. According to section 4, communication of offer is complete when it is made by the person to whom it is made. Please understand, जब उस ऑफर कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब जिस पर्सन को बताना है, स्पेसिफिक है, जनरल है, बता दिया, ऑफर का काम खत्म हो गया, द रोल ऑफ ऑफरर इज ओवर। The moment he has given an offer, the role of offer is over, right? ऑफरर ने दूसरे पर्सन को बता दिया, उसके नॉलेज में ले आया, उसको प्रपोजल दे दिया, देन एट दैट टाइम रोल ऑफ ऑफरर इज ओवर। एक्सेप्टेंस वो कब कंप्लीट होगा? एज अगेंस्ट द प्रपोजल, व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड टू हिम, so that it should come out of a power of the acceptor. Now who is proposer? प्रपोजर की नजर में एक्सेप्टेंस तब है जब उसके हाथ में आ गया, एक्सेप्टर की जब उसने प्रपोजर को बता दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, हु इज प्रपोजर? जो आपको प्रपोजल दे रहा है, उसकी नजर में जब आपने एक जो भी मोड अप्लाई करना था वो आपने कर लिया और आपने उसको बताना था वो बता दिया, राइट। प्रपोजर की नजर में तो तभी कंप्लीट हो गया जब आपने वो मोड अडॉप्ट कर लिया। आप उसने कहा कि यू आई वांट टू सेल ए कार, यू सेंड मी अ मैसेज ऑन टू दिस नंबर। जब आपने वो मैसेज कर दिया, प्लीज अंडरस्टैंड, वो मैसेज कर दिया, द जॉब ऑफ प्रपोजर इज ओवर। किसी कारणवश वो मैसेज आपको नहीं मिला, सैटेलाइट डाउन हो गई, सर्वर डाउन हो गया, वट जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, when there is one tick, what is that meaning? कि अभी आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं है, right? When it is two tick, what it is meaning? Yes, message has arrived. तो जैसे ही वो टू टिक आया, प्रपोजर को पता लग गया द जॉब इज ओवर। एक्सेप्टर को कब? when it is seen, वो ब्लू कलर हो जाए तो, राइट? तो जब आपने कोई मोड अडॉप्ट करके भेज दिया, द जॉब ऑफ प्रपोजर इज ओवर। एक्सेप्टर को ने जब देख लिया, दैट इज ओवर इन ए कंप्लीट मैनर। तो ये दोनों चीजें होनी जरूरी हैं एक्सेप्टेंस के लिए। मान लीजिए आपने मैसेज भेजा नंबर पे, वो इट इज वन ओनली, इट मींस मैसेज इज नॉट डिलीवर्ड, राइट? यानी कि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, प्रपोजर का काम कंप्लीट नहीं हुआ। व्हेन इट इज टू, द जॉब ऑफ प्रपोजर इज ओवर, कि हमने डिलीवर्ड हो गया, डिलीवर्ड हो गया। Till the time it is not seen, it is not treated as a valid acceptance. तो वो जो एक टेक, फिर ब्लू, फिर सॉरी येलो एंड ब्लू जो सिग्नल हैं, दे आर डिपिक्टिंग दिस। तो प्रपोजर का मैसेज भेजना इज जॉब डन ऑफ द प्रपोजर। एक्सेप्टर ने उसको देख लिया, उसकी नॉलेज में आ गया कि ही हैज एक्सेप्टेड दिस, मुझे अब इसको कार सेल करनी है, देन द एक्सेप्टेंस इज डन। अगर इन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। लेट मी टेल यू दिस, राइट? यस, इज इट क्लियर? Yes, Is ma'am. it clear, बच्चे? Okay, okay. So the WhatsApp example is very much valid, very much valid. प्रपोजर ने जहां मैसेज करना था वो कर दिया, राइट? अगर ये वन है तो कहीं ना कहीं प्रपोजर जॉब इज नॉट डन। हो सकता है गलत नंबर टाइप कर दिया हो सकता है वो उसने सही से ना किया हो, जो भी है। टिल द टाइम प्रपोजर सी डबल टेक, इट इज डिलीवर्ड। अब मान लीजिए दैट प्रपोजर इज नॉट गोइंग टू सी, है ना, प्रपोजर को जो नंबर दिया था वो वैलिड नंबर नहीं दिया, तब ये माना जाएगा कि प्रपोजर का काम डन हो गया? नो, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल दे रही हूं, मान लीजिए जो नंबर दिया था
उसको प्रपोजर को लेट्स टेक दिस एग्जांपल, लेट्स टेक द नंबर वाज 98253, राइट। आपने इस नंबर पे भेज दिया और आपको आ रहा है अभी, जैसे आप मैसेज कर रहे हो या व्हाट्सएप कर रहे हो, आपको ये आ रहा है कि इट इज नॉट डिलीवर्ड। इट मीन्स प्रपोजर हैज टू मेक एन एफर्ट टू सेलेक्ट कि ऑफर क्या थी और कहाँ एक्सेप्ट करनी है, क्या नंबर लेना है। तो प्रपोजर को दोबारा से ऑफरर के पास बात करनी पड़ेगी कि आई एम ट्राइंग टू सेंड यू मैसेज बट जा ही नहीं रहा है। अगेन वो जो एफर्ट्स करेगा और दोबारा भेजेगा, टिल द टाइम इट इज नॉट क्लियर इट विल नॉट बी डन। द मोमेंट इट इज डबल टिक, इसका मतलब है कि राइट मैसेज टू द राइट पर्सन हैज अराइव्ड, जॉब ऑफ प्रपोजर इज डन। प्रपोजर के एफर्ट्स करने के बाद भी वो मैसेज नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। वो ये नहीं कह सकता कि ये नंबर लिखा हुआ था, मैंने इस नंबर पे भेज दिया है तो अब मुझे ऑफर चाहिए चाहिए, जब तक एक्सेप्टर देख ना ले उसको, राइट। बोथ पार्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रपोजर के मैसेज भेजने से उसको एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? टिल द टाइम एक्सेप्टर सीज एंड एक्नॉलेज इट, यस आई हैव चेक्ड इट। So one take, two take, and तीन take, right? That is all example of this, right, बच्चे? Yes, ma'am. Okay, okay. Revocation of offer and acceptance. Please understand. Revocation का मतलब होता है when the offer is revoked or cancelled. क्या मतलब होता है कि हमने ऑफर दिया बट मेरे को अब कैंसिल करना है। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। There is a right given by the law. If you have made an offer and you want to cancel it, you can. But कब cancel कर सकते हो? If offer is made and you want to cancel, it is only possible when the proposer has not accepted it before it. तो अगर आपने एक लेटर भेजी, राइट, ए ने बी को लेटर भेजी कि यस आई वांट टू सेल माय कार, ठीक है, नेक्स्ट डे उसने कार भेज दिया कि नो नो आई डोंट वांट टू सेल ए कार, वो भी लेटर पहुंच गई। लेटर दोनों ही उसको मिल गई हैं। अगर उसने पहले ये पढ़ ली लेटर कि यस ही वांट्स टू सेल ए कार एंड आई एक्सेप्टेड इट, तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, फिर वो कैंसिल नहीं होगी। आपको ड्यू टाइम के अंदर ही कैंसिल करनी है। तो ऑफर वुड बी कैंसल्ड इन द टाइम व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग इट। इफ ऑफर इज मेड इन सच ए मैनर वेयर देयर इज अ टाइम स्पैन। टाइम स्पैन समझिए कि आई मेड ए कॉल टू बी, आई मेड ए कॉल टू बी, जस्ट ए मिनट, एंड बी को मैंने बोला कि यस इट इज फाइन, आप मुझे एक वीक में बता दीजिएगा। तो ए ने जो बी को टाइम दिया है दैट इज 1 वीक। सो दैट इज बेसिकली ए के पास भी उतना ही टाइम है कैंसिल करने का। ए ने कहा कि मुझे एक हफ्ते में आप सोच के बता दीजिए मुझे गाड़ी बेचनी है। एक वीक के अंदर अंदर ए कभी भी कैंसिल कर सकता है, राइट, बिकॉज बी के पास भी जितना टाइम है ए के पास भी उतना ही है। ए अगर 3 दिन के बाद कहता है नो 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 माई कार हैज मेट विद एन एक्सीडेंट आई डोंट वांट टू ऑफर नाउ, यस इट इज वेरी मच वैलिड, वेरी मच वैलिड। So offer may be cancelled at any point if time is given within that time. If no time is given, then accordingly general reasonable time के अंदर वो कैंसिल कर सकता है। बट वो तब कैंसिल नहीं करेगा जब एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर बच्चे? यस बेटा, ऑफर Yes, का ma'am. समझ, ऑफर का समझ आ गया। अब ये तो राइट है ऑफरर के पास। अब एक्सेप्टर के पास क्या राइट है? वो भी किसी भी टाइम कैंसिल कर सकता है। कब? जब एक्सेप्टर ने उसको नहीं देखा। जैसे कि अब वही बात, आपने मैसेज भेजा उसके बाद डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, तो दिस इज नथिंग बट द एक्सेप्टेंस हैज बीन ट्रीटेड एज कैंसल्ड एंड इट इज राइट, इट इज वैलिड। ए ने बी को बोला कि मुझे मैसेज कर देना, आई वांट टू सेल माय कार, यू मैसेज इट। टिल द टाइम ए ने चेक नहीं किया मैसेज, बी डिलीट कर देता है। दिस इज द कंप्लीट राइट अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्सेप्टर। बट प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट हैज बीन सीन, देन देयर इज नो पॉइंट दैट ए कैन चैलेंज यू इन द कोर्ट। अगर ये सीन हो गया है, डिलीट फॉर एवरीवन की ऑप्शन चली गई है,
तब आपके पास एक्सेप्टेंस की डिलीट ऑप्शन भी चली गई है. टेक इट लाइक दिस. तो ऑफर मे बी रिवोक्ड, acceptance may be revoked, but that is a time limit. Within that time अगर आपने कर दिया है, it would be treated as cancelled and it is valid. If not, it is treated as not valid. Any party may challenge. Yes beta. Yes Yes, beta. ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Look at this example which I wanted to show you. Yes, just last one. There is one party M. That party is sending on 1st June that I want to sell my car for 5 lakh. Letter reaches N on 3rd of June. 1st जून को भेजा, 3rd जून को उसने लेटर पहुंच गई. N accepts the letter posted on 5th. Letter reaches to M on 7th. अब इसमें 1st जून को जो लेटर उसने भेजी है 3rd जून को मिली है. मान लीजिए अगले ही पल वो कहता है मुझे सेल नहीं करनी. लुक एट दिस, लुक एट दिस. ऑफर कब हुई? 3rd जून को. एक्सेप्टेंस 5th जून को. एक्सेप्टर को कब मिली? 7th जून को. तो एनी ऑफर में बी रिवॉक्ड बिफोर 5th जून. आराम से. एक्सेप्टेंस में बी रिवॉक्ड बिफोर 7th जून. So please understand, revocation is available, cancellation is available, but till the time another party does not have a knowledge about it. सबसे सिंपल फंडा है. मैंने आज अगर आपको ऑफर दी है, मैंने कहा 1 वीक तक मुझे जवाब दे दो, तो मेरे पास भी 1 वीक का टाइम है आपको बताने के लिए कि नाउ दिस ऑफर इज नो मोर. मैंने जो कार सेल करनी थी वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, या वो टूट गई है, या वो खराब हो गई है, या वो कहीं चली गई है, whatever, मैं भी कैंसिल कर सकती हूँ. ऑफर में भी कैंसल्ड. आज अगर 1st जून है, वो 5th जून तक उसके पास टाइम था कि वो उसको कैंसिल कर दे, क्योंकि एन ने कब एक्सेप्ट किया? 5th जून. इसी तरीके से एन के पास भी एक्सेप्टेंस कैंसिल करने का टाइम है. कब तक? बिफोर 7th जून. यस, एनी डाउट? No, ma'am. Okay, okay. So I believe this is all clear to you. Anything you wanted to say, please let me know. Yes? No, ma'am. Okay, okay. So this was all about today's class. We'll meet tomorrow again, right? Till then, you please try to attempt your test and let me know if any problem is coming. If there is no problem, then it is fine. Otherwise, send me a message that there is a problem. I'll create a Google Sheet, bache. Okay? Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, Deepak. Thank you all. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मैम. लास्ट का कोई अटेंड किया था? हेलो. No.
Welcome to this is Shuma Hama Assistant. हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल मैं निराज से कहाँ पे बुकिंग करनी है? अच्छा समझिए। कौन सा होटल है? नील की रनी। अच्छा कब चाहिए? कब चाहिए? परसों ना 4 तारीख। नहीं होटल नीलकंठ अवेलेबल नहीं है। हम्म, कहाँ पे आपको चाहिए बोलिए मैं करवा दूँ। कौन सा आप बोल रहे हैं? अच्छा सिंपल एड्रेस। बता दीजिए। अच्छा एक अच्छा होटल है सुभद्रा बोल के सिरवना नेरुल के पास सनपाड़ा। एसी की इंटरनेट सारा फैसिलिटी मिल जाएगा। ये आपको डिस्काउंट करके होगा। बता दीजिए। 1165 रुपीज। 1165। समझ लीजिएगा। अच्छा आपका बुकिंग आईडी है SYEF 7549। ओके। होटल शुभोदया 4 से लेकर 5 तक 2 गेस्ट। आपको 1165 पे करना है। वोटर आईडी आधार कार्ड और पासपोर्ट लेके जाएगा। पैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं है। आपका अगर कोई फ्यूचर बुकिंग है करवा सकते हैं। ऑफर चल रहा है। ठीक है मैंने डिटेल लिंक भेजा है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो आप जाके भी पे कर सकते हैं। ठीक है मैंने पूरा डिटेल भेज दिया है। हाँ बोलिए।
ठीक है, आपको एक कंफर्मेशन कॉल आएगा और मैंने पूरे डिटेल भेजा है, चेक कर लीजिए और आईडी लेके जाइएगा, वोटर आईडी, आधार कार्ड नहीं तो पासपोर्ट नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, और आप चाहे तो लंच डिनर भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल भेज दे, चेक कर लीजिए। आप एक बार चेक कीजिए, एसी टीवी इंटरनेट सारे फैसिलिटी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक। ठीक। वेलकम टू दिस विश्वकर्मा होम इंस्टीट्यूट। जी। वेलकम टू दिस विश्वकर्मा होम इंस्टीट्यूट। जी बोलिए। ठीक है, थोड़ा लाइन पे बनिए, आपकी कॉल को हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें ट्रांसफर करवा दे। वेलकम टू दिस विश्वकर्मा होम इंस्टीट्यूट। हाँ बोलिए।
हाँ बोलिए। Welcome to this Shuma Home Institute. हाँ बोलिए। जी बोलिए, किसका सहायता कर सकती हूँ? हाँ हाँ, चालू हो गया है। आप क्या बुकिंग करना चाहते हैं? हाँ, कहाँ पे बुकिंग करना चाहते हैं? ये होटल नहीं है सर, वो की तरफ से बात कर रही हूँ। आपका होटल बुकिंग करना चाहते हैं? हाँ, आपका मोबाइल नंबर जान सकती हूँ? चेक करना पड़ेगा सर, पहले तो चेक नहीं करेंगे, मैं बताऊंगी कैसे। आपका मोबाइल नंबर बोलिए। हाँ हाँ। अच्छा, लोकेशन बता दीजिए। कहाँ? कहाँ पे चाहिए? कॉटन ग्रीन। अच्छा। ये कहाँ पे है? नहीं नहीं, कॉटन ग्री ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, चेन्नई, कहाँ? ठीक से लोकेशन बता दीजिए। ठीक से आपका सिटी कौन सा जगह है, लोकेशन ठीक से बताइए। नहीं तो नहीं हम। हार्वर्ड लाइन। ये नहीं आ रहा है सर, आप एक बार स्पेल करके बताइए जगह का नाम।
Welcome to this is Shoma Home SST. हाँ बोलिए, कहाँ से? ये ओयो का हेल्पलाइन नंबर है, बोलिए आप क्या होटल बुकिंग करना चाहते हैं? मैंने होटल का बुकिंग हो चुका है। ठीक है, लाइन पे बनिए, आपकी कॉल को हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें ट्रांसफर करवा दो, थोड़ा समय दीजिए। हाँ समय दीजिएगा। समय दीजिएगा। वेलकम टू दिस इज शोमा होम असिस्ट यू। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्या इशू है बोलिए। हाँ हाँ, लाइन पे बनिए, आपकी कॉल को हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें ट्रांसफर करवा दो। वेलकम टू दिस इज शोमा होम असिस्ट यू। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, कोई इशू नहीं है। आपको मोबाइल नंबर बोलिए, कौन सा नंबर है आपका? हाँ, कहाँ पे बुकिंग करनी है बोलिए। अच्छा, चेक कर लेती हूँ, थोड़ा समय दीजिए। कब चाहिए? टोटल गेस्ट दो है ना? अच्छा
ओलिविया का कोड बता सकते हैं? नहीं, ये होटल नहीं आ रहा है। और महिपालपुर में और कोई होटल में करवा दूं? बता दो। बता दो। अच्छा, एक होटल है महिपालपुर में, होटल बेल, ओके। महिपालपुर एक्सटेंशन दिल्ली, एसी टीवी इंटरनेट एवरीथिंग इज देयर। ओके। और आपको जो डिस्काउंट करके होगा 4 लोगों के लिए। ओके।
Welcome to the session on SST.
Welcome to this is Shoma Homey History. हाँ बोलिए. जी बोलिए बोलिए. हाँ बोलिए. हाँ हाँ हाँ. क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? हाँ हाँ. अच्छा, आप अमाउंट के बारे में जानना चाहते हैं ना बुकिंग के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ.
हाँ ठीक है, समय दीजिएगा। लाइन पे बने, आपकी कॉल को हमारे सीनियर डेस्क में ट्रांसफर करवा देंगे। जी जी जी, थोड़ा समय दीजिए।